Good morning, dear students, and welcome to the world of physics. Dear students, in our ongoing chapter, that is chapter number 10, Mechanical Properties of Fluid. In this chapter, last we discussed about Bernoulli principle and Bernoulli equation, right? What Bernoulli says, it is totally related with the energy flowing with the fluid, right? And as per the principle, Bernoulli says us the energy will remain constant, right? Energy will remain constant. So if we measure the energy of fluid at 2 points, suppose at this point and at this point, fluid is flowing in such way, right? So here the pressure P1, here pressure is P2, here velocity V1, velocity V2, the height of this point is H1, here the height is H2, right? If such conditions are there, we get this equation that P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho G H2, right? This was our equation, simple equation. And after that we get this equation P plus 1 by 2 rho V square plus rho G H is equal to constant. What this P1 1 by 2 rho V square plus rho G H, what it is? It is the energy. This is pressure energy, this is kinetic energy, and this is the potential energy of fluid, right? So the total energy of fluid at this point and the total energy of fluid at this point, both are equal. If we measure energy at this point and the energy at this point, the energy will always constant, right? So this equation we got, right? अब समझो, now certain cases are there. We know that P, that is our pressure energy, 1 by 2 rho V square, V for velocity, not for volume, right? This is velocity, 1 by 2 rho V square, and rho G H is equal to constant. This is because of pressure, this is because of motion, and it is because of height. We all are clear with this. अब समझो, बर्नौली ने हमको बता दिया कि जब भी कोई भी जगह पर प्रेशर मेजर करो, यू विल गेट इक्वल एनर्जी एट एनी पॉइंट, राइट? सो नाउ समझो, अब इस इक्वेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करते. सपोज इफ आई टेल यू दैट देर इज नो एनी हाइट डिफरेंट, हमको इन दो पॉइंट पर एनर्जी मेजर करनी है. एक बात सिंपल है, बर्नौली ने बोल दिया एनर्जी क्या आएगी, इक्वल ही आएगी, जो यहाँ मिलेगी यहाँ मिलेगी. अच्छा, डिफरेंट क्या होगा? उसकी एनर्जी में डिफरेंट होगा. इन दो के पास जो एनर्जी थी और यहाँ पर एनर्जी मेजर करेंगे, देयर विल बी अ डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हम हाइट को नहीं ले रहे. समझो, दोनों की हाइट सेम है, राइट? बोथ हैव सेम हाइट. आर यू गेटिंग? तो समझो, हाइट अगर सेम है, रो जी एच कैंसल हो गया, right? So we get only this P1 plus 1 by 2 rho V1 square is equal to P2 1 by 2 rho V2 square, right? फिर भी वही इक्वेशन है. समझो, हाइट कैंसिल हो गई, हाइट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे? P plus 1 by 2 rho V square is equal to constant. Are you getting? Right? If there is no velocity, समझो, it is not possible, right? Because it is applicable only for streamline flow. This equation is applicable only for streamline flow, right? अब समझो flow है, definitely it will have some velocity, but for instant, समझो हम flow पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये दो पॉइंट है. चलो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, right? Both are in a steady condition. Fluid at this point, fluid at this point, both it is in steady condition, ठीक है? Then उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? दिस इक्वेशन P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
right? So as per our requirement, as per our choice and as per the condition, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाला पार्ट ऐड होगा, अगर हाइट है तो हाइट वाला होगा, हाइट नहीं है तो वो निकल जाएगा, ये बचेगा, राइट? सो नाउ आर टूडेज थियरी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. उसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है? इन दैट लेट वी डिस्कस विदाउट दिस हाइट. अब समझो, हम जो एनर्जी मेजर करेंगे वो सेम हाइट वाले पे करेंगे जहां पे कोई हाइट डिफरेंट नहीं होगा. एट दिस 2 पॉइंट, समझ लो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, राइट? ये ग्राउंड है, समझो नीचे से ग्राउंड आ रहा है, नीचे से ग्राउंड है, राइट? अब नीचे से ग्राउंड है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट पर मेजर करनी है, हाइट दोनों की क्या है, सेम है. वी इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आर यू गेटिंग? पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल होने वाली है. सिंपल. सो नाउ समझो क्या कहता है. इफ देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, समझो इस इक्वेशन में हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो हमारा इक्वेशन कैसा बना? P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, राइट? दिस इक्वेशन वी गॉट. इसका मतलब क्या है, समझो कि अगर यहां पर एनर्जी एंड यहां पर एनर्जी मोशन में है, दोनों की एनर्जी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है. यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, आई एम मेजरिंग द हाइट फ्रॉम लोअर साइड, इसके नीचे से मैं मेजर कर रहा हूं, ठीक है? बोथ आर एट सेम हाइट, तो यहाँ की एनर्जी एंड यहाँ की एनर्जी इक्वल होगी. उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर नहीं करें, होगी? आंसर इज यस, होगी. बट व्हेन वी कंपेयर दिस बोथ, वो कैंसिल होने वाली है, कैंसिल ही होने वाली है. आर यू गेटिंग? राइट. सो we get this equation, P1 plus 1/2 rho V1 square is equal to P2 plus 1/2 rho V2 square. इसका मतलब क्या है? दोनों की एनर्जी सेम होने वाली. सपोज इसका आंसर है 100, समझो ये पूरा जो है इसका आंसर, फॉर एग्जांपल दिस इज 100, तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी, 100 होगी. आर यू गेटिंग? नाउ इफ इन 100 दिस इज 50 एंड दिस इज 50, P का वैल्यू 50 है, 1/2 रो V1 स्क्वायर का वैल्यू कितनी मिली, 50. आंसर हमको टोटल एनर्जी 100 मिली. सेम यहाँ 50 50, राइट? अब समझो, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इफ आई इंक्रीज द वेलोसिटी, समझो इफ आई इंक्रीज द वेलोसिटी, कोई भी केस अगर कुछ भी हो गया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, व्हाट विल इफेक्ट ऑन प्रेशर? The answer is when the velocity will increase, pressure will decrease. क्यों? अगर समझो 100 होना है, इस ये 50 में से हो गया है 70, समझो दिस इज 70, राइट? इस साइड 100 है, ये 70 हो गया तो डेफिनेटली इट विल बिकम 30. So when the velocity will increase, here 1/2 rho is constant, it is not going to be changed. The only variable part is our velocity, right? Velocity, if we change the velocity, or if in any condition the velocity of fluid is changed, if the velocity is increased, then pressure will automatically decrease. Are you getting? This is the concept we can get from Bernoulli's principle, राइट? अगर स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर वहां पर क्या हो जाएगा, कम होने वाला है. आर यू गेटिंग? ये 70 हो गई, इट विल बिकम 30. क्लियर? बिकॉज इट हैज टू बी 100. डन. सो वन कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी. इफ वेलोसिटी इंक्रीज देन प्रेशर विल डिक्रीज. क्लियर? अर्लियर इन we discussed about area and velocity, right? If area increase, then velocity will get decrease because it has to be constant. A into V is constant. That was the relation with area and velocity. Here it is the relation with velocity and pressure. Clear? Now as per this concept, समझो ये concept हमको बर्नौली ने दिया है. बर्नौली ने बोल दिया कि ऐसा होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी आप कंसीडर नहीं कर रहे हो. इफ यू हैव ओनली दिस टू, प्रेशर एंड वेलोसिटी, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, देन बोथ विल बी इक्वल एट दिस 2 पॉइंट, राइट? इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, definitely pressure has to be decreased. This is pressure, actually this is pressure energy, but you have idea, pressure energy P into V, this is our pressure energy, V for volume. If we measure this energy per volume, then we get the energy equal to pressure.
right? So pressure energy is equal to pressure. Once again, pressure energy is equal to pressure per unit volume. Clear? Okay, so with this principle, with this concept, let we study some application, right? Some application, like first the basic application, very basic, we know that. समझो, यहाँ पर स्टेशन है, ठीक है, ये एक स्टेशन है. क्या हो रहा है, कहाँ पर हम बर्नौली का यूज़ करें, बहुत जगह पर डेली लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा है बर्नौली का. ये स्टेशन है, दिस इज द प्लेटफॉर्म. यहाँ से नीचे से ट्रेन जा रही है, ठीक है, दिस इज, ये ट्रेन है, इस डायरेक्शन में जाने वाली है, राइट. इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ सम स्पीड. अब समझो, कोई एक है, समझ लो कि हम यहाँ पर खड़े हैं, एक बंदा यहाँ पर है, राइट, दिस इज द पर्सन. यहाँ से ये प्लेटफॉर्म, यहाँ से ट्रेन जा रही है और ये पर्सन यहाँ खड़ा है. क्या होता है, समझो, देर आर सम एयर पार्टिकल्स ओवर हियर. समझो यहाँ पर क्या है, एयर पार्टिकल्स है, राइट. ऑल दिस पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सम स्पीड. ये समझो कि यहाँ कोई ना कोई स्पीड से मूव कर रहे हैं. आंसर इज यस, कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, राइट. नाउ समझो क्या होता है, जब यहाँ से कोई ट्रेन कुछ हाई स्पीड से पास हो रही है. समझो क्या हो रहा है, यहाँ से स्पीड हाई, ट्रेन जो है हाई स्पीड से पास हो रही है. द फ्लो ऑफ दिस ट्रेन इट इज हाई. सो डेफिनेटली इसके कांटेक्ट में आने वाले एयर पार्टिकल भी हाई स्पीड में मोशन करेंगे. क्या करें, ये यहाँ से जा रही है तो उसके आसपास जो एयर के पार्टिकल है उसको अपने साथ लेके चली गई. आर यू गेटिंग? ये इतनी स्पीड से जा रही है, आसपास नज़दीक वाले एयर पार्टिकल को अपने साथ लेके चली गई. अच्छा, इसको वो इफेक्ट नहीं कर रहा, वो तो आराम से अपनी स्पीड से आ रहा है. आर यू गेटिंग? ये अपनी आराम से स्पीड से आ रहा है, इसको वो अफेक्ट नहीं कर रहा, इसका कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता. बट ये ट्रेन जो पास वाले एयर पार्टिकल है उसको लेके चली गई. डेफिनेटली, सो द मोशन, डेफिनेटली दिस पार्टिकल, सब जो इसकी स्पीड बढ़ गई, दिस इज सपोज वेलोसिटी v2, और यहाँ पर जो एयर पार्टिकल मोशन कर रहे थे उसकी वेलोसिटी थी v1, राइट. नाउ हियर which one is greater, v2 or v1? Answer is v2 is greater. Here the condition, velocity v2 is greater than v1. यहाँ की velocity ज़्यादा है compared to this. Are you getting? So if we measure a pressure at this both point, हमको पता है, बर्नौली ने बोला कि अगर स्पीड इंक्रीज हो गई प्रेशर विल गेट डिक्रीज. तो यहाँ पर प्रेशर समझो कि P1 है, यहाँ पर सॉरी ये प्रेशर P2, यहाँ पर प्रेशर P1, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन if we get this condition, velocity v2 is greater than v1, then the pressure condition क्या होगी, it is p2 less than p1. यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ का प्रेशर कम है. आर यू गेटिंग? क्यों कम है? बिकॉज यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई. अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, राइट. यू विल सी द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और उसको वैसा ही रहना है तो क्या करना पड़ेगा, इट विल डिक्रीज इट प्रेशर एनर्जी, प्रेशर कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग? सो वेलोसिटी v2 is greater than v1, so p2 is less than p1. दिस इज द कंडीशन. तो यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा. व्हाट विल हैपन, दिस एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, right. This all air particles will try now to move from this higher pressure to lower pressure. तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आप खड़े हो तो जैसे कि पीछे से हवाएं आपको धक्का दे रही है. आर यू गेटिंग? राइट, ऐसा लगता है, और यू विल गेट हीट विद द ट्रेन, राइट. ऐसे पीछे से धक्का लगेगा, आप ट्रेन के साथ जाके टकरा सकते हो एंड देयर विल बी ए डैमेज. Are you getting? This is the use of Bernoulli's equation and Bernoulli principle, right? We are using this concept in our daily life. See, such way. Clear? Only this concept. If velocity will increase, pressure will get decrease. Clear? अब समझो दूसरा एक एग्जाम्पल. सपोज दिस इज हाउस, राइट. उसकी कोई छत बनी है. अब समझो, इफ देर इज एयर फ्लो, राइट, बाहर से कोई स्ट्रॉम आ रहा है, जोर जोर से हवाएं चल रही है, ये घर के अंदर है,
राइट। वो एयर यहाँ पर भी टकरा रही है और वो एयर यहाँ से भी निकल रही है, सच वे, राइट। व्हाट विल हैपन, सी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, यहाँ पर आने वाली, यहाँ से निकलने वाली, यहाँ पर लगने वाला प्रेशर, ओके वी विल टॉक अबाउट प्रेशर आफ्टर, बट फोकस ऑन वेलोसिटी। यहाँ पर बहने वाली स्पीड, जो एयर की स्पीड है, सपोज दिस इज v1 एंड यहाँ पर जो स्पीड है दिस इज v2, राइट। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन v1 एंड v2? आंसर इज सर v1 इज ग्रेटर देन v2, वेरी सिंपल, v1 इज ग्रेटर देन v2, राइट। इसकी स्पीड, बाहर से स्ट्रॉम आ रहा है, यहाँ पर जो स्पीड है वो कम है, तो अब समझो कि v1 की स्पीड ज्यादा है, v2 कम है, डेफिनेटली द प्रेशर ओवर हियर, सपोज दिस इज p1, हियर प्रेशर इज p2, वी कैन गेट दिस, if v1 is greater than v2, we will get p1 is less than p2, मतलब कि ऊपर बनने वाला प्रेशर कम है और इसके अंदर बनने वाला प्रेशर ज्यादा है, राइट। हियर अपर साइड it has lower pressure and lower side it has higher pressure, are you getting? So what will happen, ऐसे जब चलता है तो ये नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो ये छत के ऊपर प्रेशर लगाती है, ये जो छत रखी है वो उठ जाएगी और जो एयर फ्लो हो जाए उसके साथ चली जाएगी, क्लियर, राइट। दिस इज द यूज ऑफ Bernoulli's principle and Bernoulli's equation, are you getting? This is very simple, very simple. It is very easy because we can feel, we can experience it in our daily life, okay. So these are some example of Bernoulli's principle. Only concept is, if the velocity will get increased, so definitely our kinetic energy is going to be increased, and that is why our pressure or pressure energy will get decreased, clear. So the total amount of energy will, now dear students, after that, clear the one more application, the use of Bernoulli's equation and principle, it is a swing bowling, right. The swing, you may heard this word, a swing, right. कोई क्रिकेट खेल रहा हो, आपको पता होगा कि स्विंग करते, बॉलर जब बॉल डालता है तो उसकी बॉल स्विंग होती है। स्विंग मतलब कि जहां पर वो गिरनी चाहिए वहां नहीं, उसके आसपास कहीं और गिरती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यहाँ से कोई बॉलर बॉल डाल रहा है, समझो यहाँ से कोई बॉल डाल रहा है, उसको जाना है इस डायरेक्शन में, ये जाके गिरेगी यहाँ पर, एज पर दिस प्रोजेक्टाइल, राइट। अगर ये यहाँ से गई तो गिरनी है यहाँ पर, अगर वो सिंपल जा रही है, सिंपल विदाउट स्पिन जा रही है, ठीक है, उसने कुछ हरकत नहीं की है बॉल पर, तो वो यहाँ से लेके यहाँ जा रही है। बट कुछ ऐसी उसने टेक्निक लगाई, बॉलर ने जब बॉल डाला, ये एक्चुअली यहाँ से जब रिलीज हुई तो गिरनी चाहिए यहाँ पर विथ सम वेलोसिटी, राइट। बट कुछ कंडीशन या कुछ एक्शन, कुछ चीज उसने अप्लाई की उस बॉल पर, क्या अप्लाई किया, बेसिकली स्पिन, राइट। तो वो यहाँ की वजह से यहाँ जा सकती है, इट कैन गो टू हियर, आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, कोई भी पॉइंट पे जा सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड अ स्विंग, सिंपल। इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। वो जो डाल रहे हैं उनको पता नहीं है, बट दे आर इवेंचुअली यूजिंग द बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। ओके, व्हाट इट इज, समझो कैसे होता है। इसको जाना है यहाँ पर, दिस इज द प्रोजेक्टाइल, राइट, बट ड्यू टू सम रीजन इट मे गो देयर, इट मे गो हियर, हियर एंड हियर, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्यों? जब बॉल, ये कब होगा, जब वो अपने बॉल पर कुछ एक्शन करेगा, इट विल अप्लाई समथिंग ऑन दैट बॉल, व्हाट ही विल अप्लाई, ही विल अप्लाई अ स्पिन। समझो, अगर ये बॉल है, ये ऐसे जा रही है इन दिस डायरेक्शन, समझो बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। ये बॉल अगर कुछ वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो एयर का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये बॉल यहाँ से इस साइड जा रही है तो मतलब एयर को काटती हुई जा रही है, तो एयर का फ्लो है वो इस साइड, उसके रिस्पेक्ट में, और दिस इज द मोशन और दिस वेलोसिटी ऑफ बॉल इन दिस डायरेक्शन। अब समझो क्या हो रहा है, अगर कुछ स्पिन नहीं है, कुछ उस पर कुछ एक्शन नहीं किया है उस बॉलर ने, सिंपल जा रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एयर आएगी वो ऐसी होकर चली जाएगी,
ऐसी होगी चली जाएगी, नीचे जो है वो ऐसी होगी चली जाएगी, सिंपल, राइट. सो बोथ साइड द वेलोसिटी विल रिमेन सेम. यहाँ पर जितनी वेलोसिटी होगी, जितना चेंज यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा. तो प्रेशर में यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं होगा. द प्रेशर एट दिस पॉइंट, सपोज P1, दिस इज P2, वी कैन से P1 इज इक्वल टू P2. देयर इज नो एनी चेंज इन प्रेशर. तो ये बॉल अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो सिंपल है, ना ही ऊपर जाने वाली है ना ही नीचे जाने वाली है, राइट. सपोज ये पेन यहाँ पर है, इसको जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ से लग रहा है, उतना ही यहाँ से, उतना ही यहाँ से, राइट. दैट इज वाई इट इज नॉट मूविंग टू एनी डायरेक्शन. बट समझो कुछ यहाँ से हवा चली, यहाँ से हवा चली, समझो, तो उसको इस डायरेक्शन में ले गई, क्योंकि ऊपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया, नीचे प्रेशर बढ़ गया. देयर वॉज अ प्रेशर डिफरेंस, समझो, राइट. सो इफ देर इज अ नो प्रेशर डिफरेंस, ये बॉल कहीं मूव नहीं करने वाली. बट नाउ इफ आई डू सम एक्शन ऑन दिस बॉल, समझो ये बॉल ऐसे मूव कर रही है, उसने क्या अप्लाई किया उस बॉल पर, स्पिन. समझो ये अब ऐसी घूमती घूमती मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे घूम भी रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. आर यू गेटिंग? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बॉल, राइट. सो what is the direction of air? Air is in this direction, right? The flow of air in this direction, this is the direction of ball, and the air flow, it is in this direction. Now consider, समझो क्या होने वाला, यही चीज, ये बॉल ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमेगी, यहाँ के जो एयर पार्टिकल है, यहाँ पर जो एयर पार्टिकल होंगे वो उसको अपने साथ ऐसे लेके चली जाएगी. आर यू गेटिंग? और यहाँ पर से बॉल इस डायरेक्शन में घूम रही है, इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो बॉल एयर पार्टिकल होंगे उसको वो इस डायरेक्शन में लेके जाएगी. आर यू गेटिंग? नाउ फॉर एग्जाम्पल समझो कि जो एयर की वेलोसिटी थी, सपोज दिस इज V1, यहाँ पर थी उतनी ही यहाँ पर थी, और यू कैन से V1 और यू कैन से V, चलो दोनों की वेलोसिटी V है, राइट. बिफोर दिस यहाँ पर जो थी, अब समझो यहाँ के नज़दीक वाले जो एयर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में कुछ डिफरेंट आया है. कितना डिफरेंट? सपोज डेल्टा V जितना डिफरेंस. तो इसकी भी वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस आया है. कितना डिफरेंस? डेल्टा V जितना डिफरेंस, राइट. नाउ कंसीडर, समझो ये वेलोसिटी जो पहले थी इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स, एंड यहाँ के एयर पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो डेफिनेटली द टोटल वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल वी कैन से V माइनस डेल्टा V. वी कैन सी इसकी टोटल वेलोसिटी क्या हुई, एक इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में. तो यहाँ की वेलोसिटी की V माइनस डेल्टा V. यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, समझो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, उसने जो मोशन करा हुई वो भी इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पर वेलोसिटी बन गई V प्लस डेल्टा V. व्हाट इज द डिफरेंस? यू कैन सी कुछ वेलोसिटी इसकी कम हो गई, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी बढ़ गई. आर यू गेटिंग? राइट. ड्यू टू दिस स्पिन, इस स्पिन की वजह से ऊपर की साइड जो वेलोसिटी थी वो थोड़ी कम हो गई, नीचे की साइड वेलोसिटी बढ़ गई है. नाउ सिंपल, इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीज आवर प्रेशर विल गेट इंक्रीज, राइट. एंड इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज ओवर हियर, द प्रेशर विल डिक्रीज, राइट. तो यहाँ का प्रेशर समझ लो, यहाँ का प्रेशर मैंने नाम दे दिया P1, ये प्रेशर है P2, राइट. सो डेफिनेटली आर P1 इज ग्रेटर देन P2. यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो गया, राइट. सो अपर साइड प्रेशर इज हायर एंड हियर प्रेशर इज लोअर, राइट. तो क्या हो रहा है, जब बॉल ऐसे घूमते घूमते जा रही है तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और नीचे प्रेशर कम हो रहा है. विद द सिंपल कॉन्सेप्ट, this ball will try to move from higher pressure to lower pressure. So वो क्या करेगी, जो यहाँ पे गिरनी चाहिए थी वो उसके नीचे आके गिरेगी, राइट. दिस इज द स्विंग. जो एक्चुअल में यहाँ गिरनी चाहिए थी, ड्यू टू दिस स्पिन ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, नीचे प्रेशर कम हो गया. नाउ इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और वो नीचे गिरेगी. आर यू गेटिंग? राइट. दिस वाज द स्विंग बॉलिंग, उसको हम बोलते हैं स्विंग बॉलिंग. कुछ ऐसा घुमाता है बॉल को तो वो अपना जो प्रोजेक्शन है जहाँ पर उसको गिरना है वहाँ नहीं गिरती, उसके आसपास कहीं भी गिरती है. अब इसको समझो कि इसको इसकी जगह ऐसा घुमा दिया, फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा समझो. इट इज इन दिस डायरेक्शन, एयर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सेम, राइट, विथ स्पीड V. हियर द स्पीड V
राइट। नाउ समझो, यहाँ के जो एयर पार्टिकल हैंगे ये ऐसी मोशन है तो उसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ के एयर पार्टिकल है इस मोशन में इस साइड ले जाएंगे। द चेंज in velocity is delta v, here also delta v. Now what is the velocity at upper side? It is v plus delta v and here v minus delta v. क्या हो गया, नीचे वेलोसिटी कम ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा, इंक्रीज हो गई। सो यहाँ पर द प्रेशर इट विल गेट डिक्रीज, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है, प्रेशर विल गेट इंक्रीज एंड हियर प्रेशर विल डिक्रीज। सो हायर प्रेशर कहाँ है, नीचे की साइड, लोअर प्रेशर ऊपर है, इट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, ये यहाँ गिरेगी। आर यू गेटिंग? दिस इज द यूज, दिस इज कॉल्ड अ स्विंग बॉलिंग, राइट। इफ वन बॉल इज मूविंग विदाउट स्पिन तो उस पर कोई या ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी, राइट। बट ये स्पिन के साथ घूमती है, देन वी कैन अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड वो कहता है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड तो आपकी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। Clear? This is the use application of Bernoulli's equation in our sports also, right? The same we can apply in football, right? फुटबॉल में भी ऐसा होता है, देखा होगा कि इस बॉल को अगर किसी ने किक मारी तो बॉल की मोशन ऐसी हुई है, राइट? वो भी ऐसा ही है, घुमा के कुछ टेक्निक लगाई उसने, टेक्निक की वजह से वो घूमना स्टार्ट हो गया एंड ड्यू टू दैट उसका प्रोजेक्टाइल कुछ कर्व बन गया। Clear? So these are the use of Bernoulli's equation, and one most common word you can heard, that is heart attack. Heart attack. Right? What you mean by heart attack? हमको पता है हार्ट अटैक कब आता है, जब हार्ट प्रेशर बहुत प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, वो प्रेशर किसका बढ़ता है, ब्लड का, ब्लड प्रेशर, राइट। यू मे हर्ड दिस वर्ड, सर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया उसकी वजह से हार्ट अटैक आया, राइट। अच्छा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना मतलब क्या है, वी नो दैट ब्लड पार्टिकल्स, cells, right, red blood cells and all bloods are moving through this blood vessels or you can say artery, right। यहाँ से ब्लड की मोशन हो रही है, समझो ये ब्लड की मोशन यहाँ से हो रही है, ये हमारी आर्टरी, यहाँ से ब्लड निकल रहा है विथ सम स्पीड, सपोज द स्पीड इज v, राइट, v स्पीड से ये निकल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये मूव कर रहा है, किसकी वजह से, कौन मूव करवाता है, मूव करवाने का काम किसका है, हमारे हार्ट का। हार्ट गिव सम प्रेशर, तो इस ब्लड वेसल के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी है और उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी भी है। आर यू गेटिंग, इसके अंदर प्रेशर भी है और वेलोसिटी भी है। वो प्रेशर देना का काम कौन कर रहा है, हार्ट। उसको अगर हमारे पैर में जाना है, ऊपर हेड पर जाना है, हाथ पे जाना है, इट रिक्वायर्स सम प्रेशर, राइट, एंड दिस इज अप्लाइड बाय आवर हार्ट, सो इट हैज सम प्रेशर एज वेल एज वेलोसिटी। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो क्या करता है, इस वेसल को बाहर की साइड, इस वेसल को बाहर की साइड धकेलने की कोशिश करता है, सिंपल है, राइट। नाउ समझो कुछ यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हार्ट है, ये फ्लो रहा है, सपोज दिस इज हार्ट, राइट, यहाँ पर हार्ट वो क्या कर रहा है, इसको पंप कर रहा है, इसको पंप कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, राइट, अप्लाई सम फोर्स, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब समझो मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया, यहाँ पे उसको बाहर जाने का रास्ता कोई भी तरीके से यहाँ पर मैंने रोक दिया, कुछ भी तरीके से, क्या होगा, ये तो अप्लाई कर रहा है, समझो यहाँ पर उसने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके। और ज़्यादा जब बढ़ता गया, ये समझो यहाँ पर तो फोर्स हो रहा है, ये हार्ट की मोशन कैसी हो रही है, ऐसी मोशन हो रही है, दिस इज द मोशन, राइट, 2 न्यूटन फोर्स ही विल अप्लाई। अब हार्ट की भी कोई कैपेसिटी होगी, समझो अब यहाँ पर अप्लाई तो कर रहा है बट कुछ निकल नहीं रहा, राइट, समझो, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉकेट, इसको ऐसे जोड़ के रखा है, इसको तो निकालना ही है, यहाँ से प्रेशर नहीं निकल रहा है, यहाँ से कोई ब्लड नहीं निकल रहा है, प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीज, समझो ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर इसको निकालना है, इट विल अप्लाई 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये सामने कुछ ऐसा हो गया है कि नहीं निकल सकता, क्या होगा, इट विल फेल, राइट। दिस इज द सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, राइट, सिंपल। और ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, समझो कुछ चीज, समझो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर था ये क्या कर रहा था, उस वेसल को, उस आर्टरी को ऐसे पुश कर रहा था बाहर की ओर, राइट। अच्छा,
अब जब कुछ यहाँ पर आ गया, समझो ये कुछ यहाँ पर आ गया, कुछ अंदर कुछ बन गया, राइट, सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन देयर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ इस ब्लड वेसल के अंदर कुछ बन गया, क्या होगा, कुछ एरिया हमारा कम हो गया, एरिया कम हो गया तो हमको पता है हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वी नो दैट, राइट। एरिया अगर कम हो गया है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या होने वाला है, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। वन मोर टाइम डियर स्टूडेंट, फोकस हो रही है, समझो अगर कुछ यहाँ पर जम गया है, कुछ भी, राइट, फैट या कुछ भी इसके अंदर जम गया तो इसका एरिया जो था वो कम हो गया, इसका जो एरिया था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एरिया अगर कम हो गया तो इस कम इतने से एरिया में से उस ब्लड को जाना है, सो डेफिनेटली अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेगा। इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड इट विल गेट डिक्रीज एज पर बर्नौली। अगर प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो समझो ये प्रेशर क्या कर रहा था, उसको बाहर की ओर ऐसे रख रहा था वेसल को, अब वो प्रेशर नहीं है तो वे वेसल क्या करेगी, बाहर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, राइट, सो इट विल ट्राई टू श्रिंक इन, आर यू गेटिंग, ये क्या करेगी, श्रिंक करने का ट्राई करेगी, धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। पीछे से हमारा हार्ट प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, फिर से वही हुआ, अगर प्रेशर दिया तो डेफिनेटली स्पीड भी इंक्रीज हो गई, समझो प्रेशर हमने यहाँ से पंप दिया, यहाँ से फोर्स दिया, तो वेलोसिटी जो थी पीछे से कुछ आ रहा है तो ज्यादा स्पीड से चलेगा, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वी गेट दिस कंडीशन, प्रेशर विल डिक्रीज। तो दे तो रहा है बट अल्टीमेटली प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इनसाइड द वेसल, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो मतलब कि ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगी, तो ये जो वेसल है वो ऐसी आती रहेगी, राइट। धीरे 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 करके क्या होगा, एट वन मोमेंट ये ऐसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये जो वेसल ऐसी थी इट विल बी लाइक दिस, आर यू गेटिंग। तो अब उसके पास कुछ रास्ता नहीं है, यहाँ पर जितना भी फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पर मिलने वाला प्रेशर, हार्ट की वजह से मिलने वाला प्रेशर, हार्ट पर जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा हो गया, बढ़ गया, राइट, एंड दैट इज वाई we can face the condition that is heart attack, right? So this is very simple, dear students, simple phenomenon. We are using only Bernoulli's equation in this heart attack, right? So hope all of you are clear with the applications, right? We discussed some applications of Bernoulli's equation. Just remember one topic: if velocity increase, pressure will decrease, because kinetic energy and pressure energy should all, the sum of that should always be equal. Clear? So this all are some examples or applications of Bernoulli's equation. It is very important. Such type of sums can be asked in MCQ or in exam in a 2 mark question or 3 marks question, right? They will give some direction कि ये बॉल इस ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एयर का फ्लो है, बताओ ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, right? These are some conceptual MCQs they may ask in exam. So dear students, this is very important for exam point of view. So practice well and do your best. Thank you very much and all the best.